important topic that to set up the internal control system, it is the responsibility of the top management. But whether it is perfect, yes or no, that is first. And number two, whether it is being properly followed by each and every employee, yes or no, that is number two. These two responsibilities lying with the internal auditor. Be clear. Yes. तो इंटरनल ऑडिटर ये दो चीज़ की केयर करता है. सिस्टम इज अप टू द मार्क, यस और नो. एंड नंबर टू, all employees comply with the proper system. Yeah, if anyone takes the shortcut, it would be treated as a fraud, and accordingly the action will be taken by the top management. In case of the internal audit, I like to share at this platform the 10 things. Means kindly remember one question that we discussed. It was the differences between the internal audit and the statutory audit. We discussed the 15 differences. Just मैं आपके सामने रखता हूँ. Internal auditor is appointed by the top management, that is first. His salary, his remuneration will be decided, his fees will be decided by the top management. He is a personal advisor of the top management. His performance will be evaluated by the top management. अगर उसको निकाल देना है तो removal will be decided by the top management. Everything will be decided by the top management because he is a personal advisor of the top management. Internal auditor will report to the top management. After audit, every month he will report to the top management, not to the shareholders. Yes. इंटरनल ऑडिट के केस में ही मे और मे नॉट बी एन इंडिपेंडेंट. उसकी क्वालिफिकेशन आपको पता है इंटरनल ऑडिट में दो पार्ट में है, कंपलसरी एंड वॉलंटरी. अगर आपका टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ है देन इट इज अ कंपलसरी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन. या तो क्वालिफिकेशन इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, दो में से एक ही होना चाहिए. इफ इट इज नॉट मैंडेटरी टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, देन कोई भी बंदा इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. उसके बाद मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट. उसके बाद इंटरनल ऑडिटर्स लीगल लायबिलिटी इज जीरो. क्यों? बिकॉज नॉर्मली ही इज नॉट लीगली लायबल बिकॉज हिज रिपोर्ट इज नॉट बीइंग रिलाइड अपॉन बाय द एक्सटर्नल पर्सन. हिज रिपोर्ट इज बीइंग रिलाइड अपॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट. उसका कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में जाता है मार्केट में उस पर रिलाई किया था. तो दैट इज वाई नॉर्मली लीगल लायबिलिटी विल नॉट अराइज इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट. बट टॉप मैनेजमेंट मैक्सिमम उसको क्या कर सकता है, उसको निकाल दे सकता है, उसको निकाल देगा. So that would be the maximum penalty in case of the internal audit. Yeah. Internal audit में what is the main objective of the internal audit? It is to detect and prevent error and fraud. Yeah, that would be the main objective of the internal audit. Normally, internal audit organization में होता है तो everything will be smooth. उसका advantages क्या है? Final audit will be complete in time. अगर internal audit पूरे साल अच्छा हुआ है तो जो statutory audit रहेगा वो फटाफट खत्म कर देगा. तो यानी कि in time statutory audit will be over. Yeah, so that would be the advantage. To detect and prevent error and fraud, internal auditor will examine everything in depth, no sampling because वो daily आता है organization में, तो he will examine everything in depth, no sampling will be carried out. तो these are the basic features of the internal audit. Yes, तो ये 8-10 चीज़ आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए. तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करो तो 8-10 चीज़ परफेक्शन के साथ आप लिख पाओ. या जो यहाँ लिखा है इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय सच क्लास और क्लास ऑफ द कंपनी. मैंने बोला है ना बड़ी कंपनी को करना है. और यहाँ कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर वो जॉब में है तो भी चलेगा, प्रैक्टिस में है तो भी चलेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट. या अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व्स 5 एरियाज ऑफ ऑपरेशन. क्या 5 चीज़ें एक बार देख लेते हैं. रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, compliance with the law, safeguarding of assets, economic and efficient use of resources, and accomplishing the established goals. ये इंटरनल कंट्रोल में भी मैंने 5 चीज़ें पढ़ाई थी. इंटरनल कंट्रोल इज द बंच ऑफ कंट्रोल टू अचीव 5 ऑब्जेक्टिव्स. कौन से 5 ऑब्जेक्टिव थे? नंबर 1, रिलायबल इन्फॉर्मेशन. अगर इंटरनल ऑडिट हो गया तो जो भी इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगी वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होगा, ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन होगा. नंबर 2, कॉम्प्लायंस विद द लॉ एंड प्रोसीजर्स. इंटरनल ऑडिटर उसकी केयर करता है क्या कि सभी एसओपी जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई उसका प्रॉपर कॉम्प्लायंस हो रहा है. नंबर 3, सेफगार्डिंग ऑफ द असेट्स के लिए पूरा कंट्रोल सेटअप किया जाएगा. नंबर 4, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज. ऑल रिसोर्सेज, मनी, मैन पावर एंड मशीन्स एंड मटेरियल, ऑल रिसोर्सेज विल बी यूटिलाइज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. या एंड लास्ट, इट इज द अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना. नॉर्मली ये 5 पर्पस के लिए जो भी कंट्रोल सेट किया गया इट इज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड वही इंटरनल ऑडिट के 5 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा. बी क्लियर. या
नाउ द फीचर्स दिए हैं, फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट. अब मैंने जो आपको इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपैरिजन किया है, बस वहाँ ही घूम के आएगा, देखना 10 चीज़ वहाँ ही घूम के आएगी. या चलो लेट अस डिस्कस. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल. हो सकता है कि इंटरनल ऑडिटर है वो आप एक्सटर्नल पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हो. मैं काफ़ी कंपनी में एज एन कंपनी, हम काफ़ी कंपनी में ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है. वी आर डिलीवरिंग द इंडिपेंडेंट ओपिनियन. या तो ही मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट. नंबर 2, इट कैन बी कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द एंटिटी और बाय द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पर्सन. बाहर का प्रैक्टिसिंग सीए भी हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीए में हो सकता है, या तो कंपनी में जॉब पे ले लो सीए सीए में, वो भी कर सकता है, चलेगा. या फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका खुद का डिपार्टमेंट है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. उसका एम्प्लॉई उसमें अपॉइंट किया, उसने 100 एम्प्लॉई अपॉइंट किए, वो ही पूरे इंडिया में सभी ब्रांचेस का इंटरनल ऑडिट करते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है. एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसका एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर है, बाहर से वो अपॉइंट करता है, या बाहर सीए की फर्म को अपॉइंट करते हैं और वो उसका इंटरनल ऑडिट कर रहा है. तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल. नेक्स्ट, इट इज़ कंडक्टेड फॉर रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स. क्यों किया था? सभी कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो सभी कंट्रोल परफेक्ट है, सिस्टम परफेक्ट है. एंड नंबर 2, सिस्टम का प्रॉपर कॉम्प्लायंस हो रहा है. या इट इज़ कंडक्टेड एज अ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आप नॉर्मली बोलते हैं ना लाइन फंक्शन एंड दी स्टाफ फंक्शन. आपने कोई जगह पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में देखा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन और इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइन फंक्शन एंड द स्टाफ फंक्शन. लाइन फंक्शन मीन्स एग्जीक्यूशन, स्टाफ फंक्शन मीन्स एडवाइजरी. तो इंटरनल audit is a staff function, it is not a line function, be clear. It intends to furnish the analysis, appraisal and suggestions. मैं पूरा हम इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं? पूरा सिस्टम एनालिसिस करते हैं. अगर सिस्टम में कोई डिफॉल्ट मिलता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या है वो इम्पैक्ट लिखते हैं, उसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा वो करेक्टिव एक्शन रिकमेंडेशन भी लिखेंगे हम. कि मैनेजमेंट को ये एक्शन लेनी चाहिए. तो कंप्लीट हम जो भी प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम लिखते हैं डिटेल में, प्रॉब्लम की फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उसकी प्रोसीजरल इम्पैक्ट एंड अवर रिकमेंडेशन फॉर द करेक्टिव एक्शन. चार चीज़ प्रॉपरली इंटरनल ऑडिटर अपने रिपोर्ट में टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं. या नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटिंग फंक्शन एज द कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग इफेक्टिव कंट्रोल एट अ रिजनेबल कॉस्ट. मीनिंग दैट इंटरनल ऑडिट इज नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज कंडक्टेड. नो, इट इज नॉट a case. Internal audit is conducted every month या तो every quarter on regular basis. तो 12 महीने रेगुलरली किया जाता है. तो 12 महीने में परफेक्ट इंटरनल ऑडिट 100% थोरो वेरिफिकेशन के साथ इंटरनल ऑडिट किया जाता है. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट विल बी कंप्लीटेड इन टाइम, फास्टर, with very speed. Statutory auditor can rely upon the work of the internal auditor if provided internal audit is conducted properly. Yeah. तो आई होप these are the features of the internal audit. अगर मैंने वो कंपैरिजन किया वहाँ से भी आप 10 फीचर अगर उठा के लिखोगे तो भी चलेगा. या फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. अप्रेजल फंक्शन अभी आपने देखा डिटेल में चेक होगा एंड रिकमेंडेशन किया जाएगा एज अ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ स्टाफ फंक्शन, वो भी हमने देखा. एक बार वो सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन में देख लो दैट इट्स पॉलिसीज आर प्रॉपर्ली फुलफिल. सभी पॉलिसी का प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है. इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज इफेक्टिवली, इज रिलायबल एंड कंप्लीट. परफेक्ट ऑडिट हो गया इंटरनल ऑडिट, बाद में उस पर टॉप मैनेजमेंट रिलाई कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन पे. डेटस का लिस्ट है, समझ लो टॉप मैनेजमेंट ने मांगा आज का डेटस का लिस्ट दो, अगर वो इंटरनल ऑडिट हो गया बाद में अगर डेटस का लिस्ट टॉप मैनेजमेंट को देते हो तो वो रिलायबल है, अदरवाइज इट इज नॉट रिलायबल. हो सकता है अकाउंटेंट ने काफ़ी मिस्टेक किया. थर्ड, दैट द ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आर सेफगार्डेड. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेल डिजाइन. जो कंट्रोल सिस्टम भी परफेक्ट है यस और नो वो भी चेक करता है. एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इन प्रैक्टिस मीन्स सभी लोग प्रॉपरली कंप्लाई कर रहे हैं. अदर ड्यूटीज क्या? बीइंग कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी एडोप्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट. अगर टॉप मैनेजमेंट की CSR पॉलिसी है तो प्रॉपरली कंप्लाई किया जाता है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट की गई है, वो भी चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर. बीइंग कंसर्न विथ द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू एरर्स एंड रिक्वायर्ड चेंजेस टू प्रिवेंट एरर्स. एरर फाइंड करेगा, प्रॉपर रिकमेंडेशन देगा एंड टॉप मैनेजमेंट प्रॉपरली एक्शन लेगा. तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल बी अप टू द मार्क एंड देयर विल बी द प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड. या I can say internal auditor is an advisor of the top management. Statutory auditor is not an advisor. Internal auditor has to advise. कोई भी मिस्टेक फाइंड करता है तो साथ में उसको उसका सॉल्यूशन भी देना है टॉप मैनेजमेंट को. बी क्लियर. इन बिग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल. आगे बढ़ो. बीइंग कंसर्न विथ
The response of the internal control system to the external stimuli, the internal control system must continuously upgrade itself to deal with the changes. Yes, as per the changes in the market, changes in the law, changes in accordance with the timeline. जो भी मार्केट में चेंजेस आता है अकॉर्डिंगली आपकी कंट्रोल सिस्टम चेंज होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हर बार बजट में काफ़ी चेंज आता है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स जीएसटी का जो भी चेंजेस आता है अकॉर्डिंगली आपकी सिस्टम में चेंज आना चाहिए. या तो अकॉर्डिंगली यू शुड अपडेट द सिस्टम यानी कि इंटरनल ऑडिटर को रेगुलरली सिस्टम अपडेट करना चाहिए. आई गिव यू एग्जांपल. समझ लो अभी लेटेस्ट प्रोविजन है टीसीएस का. टीसीएस इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख. या तो इमीडिएटली आपके सिस्टम में एक्शन में आ जाना चाहिए कि अब टीसीएस भी एप्लीकेबल है. टीडीएस अभी लेटेस्ट बजट में आया क्या 194 क्यू इज इंट्रोड्यूस क्या कि टीडीएस इज एप्लीकेबल इवन इन केस ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख. तो ऐसा कोई भी नया अपडेट आता है आपके सिस्टम में अकॉर्डिंगली कंट्रोल आ जाना चाहिए. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर एवरी मंथ. Be clear. Acting as a training officer in the internal control matters. Yes. इंटरनल कंट्रोल में जहाँ भी वीकनेस है प्रॉपरली फाइंड करो, उसके प्रॉपर करेक्टिव एक्शन के लिए रिकमेंड करो, प्रॉपर ट्रेन करो एम्प्लॉय को. ऑडिटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इंटरिम अकाउंट्स एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. यस, टॉप मैनेजमेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है एक बार इंटरनल ऑडिटर चेक कर लेगा, बाद में ही टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगा. तो क्या है, टॉप मैनेजमेंट के पास अगर इनपुट करेक्ट आता है तो वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, आउटपुट परफेक्ट होगा. बी क्लियर. तो ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल इन्फॉर्मेशन वेन एवर इट इज प्लेस बिफोर द टॉप मैनेजमेंट, बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. टेकिंग अ शेयर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फिगर्स इन द एनुअल अकाउंट्स. यस, थरोली आप इंटरनल ऑडिट करोगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम ईजी हो जाएगा. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयरिंग कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो. या अगर आपने थरोली इंटरनल ऑडिट किया है तो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल रिलाई अपॉन योर वर्क. या एंड वेरी फास्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट खत्म हो जाएगा, इन टाइम खत्म हो जाएगा. या बीइंग कंसर्न विद द कंप्लायंस विद द एक्सटर्नल रेगुलेशंस सच एज दोज ऑन द एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलेटेड पार्टीज लाइक दैट. यानी कि ऑल कंट्रोल्स शुड बी प्रॉपर्ली सेट अप, ऑल लीगल कंप्लायंसेस शुड बी मेड प्रॉपर्ली. या तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. आई कैन से उसके फंक्शन देख लो, उसकी ड्यूटीज देख लो, दोनों सेम ही रहेगा. फंक्शन देखोगे या तो ड्यूटी देखोगे, नॉर्मली सेम रहेगा. मैं कंक्लूड कर रहा हूँ. चलो फंक्शंस में क्या आएगा, पहले टू सेफगार्ड द असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2 टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड. नंबर 3 स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. नंबर 4 compliance of all SOP. Number 5 compliance of all the legal provisions. Number 6 personal advisor of the top management. Number 7 to ensure the system is up to the mark. Number 8 to ensure all employees are complying the internal control system properly. या 8-10 चीज़ आपको फंक्शंस में प्रॉपर्ली लिखनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर्ली लिखनी चाहिए. आई होप इट इज क्लियर टू यू. या नाउ इट इज स्कोप में भी वही आएगा जो भी हमने फंक्शंस देखो या तो स्कोप देखो, दोनों सेम ही होगा. वही वो चेक करेगा. देखो जो है ना, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है, सेफगार्डिंग ऑफ द असेट्स, लाइक दैट. यानी कि सभी क्वेश्चन घूम घूम के वहाँ ही आ रहा है. इट इज़ राउंडिंग अराउंड. बी क्लियर. आपको एक क्वेश्चन थोरोली देख लेना चाहिए जो मैंने बताया 10 चीज़. एंड मैंने तो वहाँ तक बताया, आज से 15 लेक्चर पहले मैंने बता दिया. क्या जब मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट कंपेयर किया तो मैंने आपको वो टाइम पे बताया था. मैं 3 क्वेश्चन एक साथ पढ़ा रहा हूँ. स्टैट्यूटरी ऑडिट की शॉर्ट नोट आती है तो वो 15 पॉइंट लिख दो, इंटरनल ऑडिट की शॉर्ट नोट आती है तो ये 15 पॉइंट लिख दो. अगर दोनों का डिफरेंस आता है तो दोनों लिख लो. तो मीनिंग द 3 क्वेश्चन विल बी परफेक्ट. नीड ऑफ द इंटरनल ऑडिट, दिस इज गुड क्वेश्चन. इंटरनल ऑडिट कब एडवाइजेबल है? तो कि इंक्रीज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस कॉम्प्लेक्स नेचर है तो इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल. नंबर 2 एनहांस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, आपको लीगल प्रोविजन ज़्यादा एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी है लाइक दैट, तो इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल. थर्ड फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स टू मैनेज दैम. या अगर आपका काफ़ी ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट आपको मैनेज करना पड़ेगा तो कंट्रोल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा तो इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल. या अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल, नॉर्मल ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है आपका, अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है, एकदम लेटेस्ट बिजनेस मॉडल है तो भी
क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल होता है तो मेरा कंट्रोल ऑलरेडी होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। जब नया मॉडल है तो हमको संभाल के चलना पड़ता है, तब कंट्रोल सिस्टम अच्छी चाहिए, इंटरनल ऑडिट चाहिए। इंटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस, IT बेस्ड आपके ऑर्गेनाइजेशन में IT सिस्टम काफ़ी यूज हो रहा है, तो कंट्रोल सिस्टम पावरफुल चाहिए। स्ट्रेंथन नॉर्म्स मैंडेटेड बाय द रेगुलेटर्स, आपको काफ़ी लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल है। एंड एन इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अगर आपके बिजनेस में काफ़ी टफ कंपटीशन है तो बहुत से इंटरनल ऑडिटर रखो, काफ़ी अच्छा आपको एडवाइस करे तो आप एक स्टेप आगे निकल जाओ आपके कंपटीटर्स के कंपेयर में। तो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा है, लीगल रेगुलेशंस आपको ज़्यादा एप्लीकेबल है, IT सिस्टम इंटेंसिवली यूज़ हो रही है, आपको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इन दैट केस इंटरनल ऑडिट इज एडवाइजेबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल फॉर द फॉलोइंग रीजन। वही उसका एडवांटेजेस आ गया। एक चीज़ मुझे बताओ, जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो सभी ऑब्जेक्टिव अगर अचीव होता है तो वो एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखना वही रिपीट होगा, देखना इंटरनल ऑडिट एश्योर कॉम्प्लायंस ऑफ द कारो रिपोर्ट 2016। कारो नहीं, सभी लोगों, अगर इंटरनल ऑडिट है तो सभी लोग प्रॉपर कंप्लाई हो रहा है, दैट इज फाइनल। नंबर 2, इट एंश्योर्स कॉम्प्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रही है। इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ MIS थ्रू इंटरनल ऑडिट्स, इंडिपेंडेंट अप्रेजल एंड रिव्यू, टॉप मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है और रिलायबल जा रही है। इट लुक्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, मीनिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट कैन इवेल्यूट वेरियस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, टॉप मैनेजमेंट को सजेशन भी देगा। इट कैन इवेल्यूट वेरियस प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, वो आ गया। दिस सिस्टम मेक्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है यस और नो वो चेक करेगा। इट एंश्योर्स एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो टॉप मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो मीनिंग देयर बाय ऑल विल रिमेन सेम। तो 10 ऑब्जेक्टिव अगर थरोली आप एक पेपर पे लिख लो, 10 ऑब्जेक्टिव, उसको ही आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ही आप रीजंस में कन्वर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या एडवांटेज जॉब आ रहा है, देख लो वही एडवांटेज है, 10 आप लिख सकते हो, इसमें ही वही रिपीटेशन होगा। तो टॉप मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट होगा, क्या? इट गिव्स अ रिव्यू ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर वो चेक करेगा सिस्टम अप टू द मार्क है यस और नो। नंबर 2, इट फर्निशेस द डेविएशन इन द फॉलोइंग प्रोसीजर्स फॉर सेफगार्डिंग द एसेट्स। अगर कोई भी डेविएशन उसने पकड़ा, फ्रॉड पकड़ा, शॉर्टकट पकड़ा, तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। इट अप्रेज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिस्टम परफेक्ट है या नहीं है। इट एस्टैब्लिश द पॉलिसी, प्लान एंड स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंटेड, सिस्टम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है, सभी एम्प्लॉय प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं यस और नो। वही रिपीट हो रहा है, देखो 210 चीज़। हाँ, नीचे देखो टू द स्टेचुटरी ऑडिट, सभी लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, सब कुछ प्रॉपर्ली कंप्लाई हो रहा है यस और नो, उसका केयर करता है। तो देखो स्टेचुटरी टू द स्टेचुटरी ऑडिटर, स्टेचुटरी ऑडिटर को क्या क्या काम आएगा, इंटरनल ऑडिटर, उसका स्कोप ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाएगा। अगर इंटरनल ऑडिट अच्छा हुआ तो स्टेचुटरी ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क अच्छा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। या देखो इट इवेल्यूट्स द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सो दैट स्टेचुटरी ऑडिटर कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट, जो आया ना उसका वर्क वो रिड्यूस कर देगा, सैम्पलिंग रिड्यूस कर देगा। इट कैरीज आउट द फिजिकल स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर, सो रिलायंस ऑन स्टॉक वैल्यूएशन इज इंक्रीज। अगर इंटरनल ऑडिटर ने स्टॉक टेकिंग किया है तो स्टेचुटरी ऑडिटर बाद में स्टॉक फिजिकली वेरीफाई नहीं करेगा। इट हेल्प्स इन टाइमली कंप्लीशन ऑफ अकाउंट्स एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स, इन टाइम स्टेचुटरी ऑडिट खत्म हो जाएगा। इट इवेल्यूट्स द कंटेंट लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरनल ऑडिटर ने अगर कंटेंट लायबिलिटी का लिस्ट पूरा दे दिया तो स्टेचुटरी ऑडिटर को रेडीमेड मिल जाएगा। इट एंश्योर्स द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्री ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट। स्टेचुटरी ऑडिटर है ना, वो सब कुछ डिटेल में चेक नहीं कर सकता, वो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करके सिस्टम परफेक्ट है तो रिलाई करेगा एंड सैम्पलिंग करेगा और ऑडिट खत्म कर देगा। बट इंटरनल ऑडिटर विल वेरीफाई एवरीथिंग इन डिटेल, तो स्टेचुटरी ऑडिटर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसका स्टेचुटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल देखो तो या उसका मोरल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बी क्लियर। या एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, तो आई कैन से जब भी एडवांटेजेस लिखो ना तो ऐसा अलग 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव लिखवाया था, 10 रीजन था, 10 उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर दो। क्या? तो सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स लाइक दैट, रिलायबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द टॉप मैनेजमेंट, इस तरह से 10 चीज़ परफेक्ट लिख दो। और मैं एक ऐड करता हूँ, क्या? अगर इफ देयर इज एन इंटरनल ऑडिट तो देयर वुड बी द मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉई पे मोरल कंट्रोल रहेगा। क्या? कोई शॉर्टकट नहीं लेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है इंटरनल ऑडिटर नेक्स्ट मंथ आने वाला है, एवरी मंथ आने वाला है, वो 1 महीने में पकड़ लेगा, तो क्यों फ्रॉड करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर विल बी द मोरल कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉई, ऐसा भी इसमें आपको मिलेगा। या
जो ये भी मैं जनरल भी देख लूँ, देखो द रेगुलर ऑडिट एंड चेक्स रिजल्ट इन एक्यूरेट एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम. It is a critical review of the business performance and management. It provides strict supervision and direction to have the effective controls. Regularly advice मिलेगा top management को. It provides safeguards to the business assets. The auditor can suggest ways and means to improve the performance. It prevents occurrence of error and fraud. It enhances the performance of the business by division of duties and responsibility. आपको पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया क्या इंटरनल चेक सिस्टम मीन्स इट इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली सुपरवाइज बाय द अनदर पर्सन. कोई भी फंक्शन का पर्टिकुलर फंक्शन का 100% पावर एक एम्प्लॉय को अलोकेट नहीं करने का. इट शुड बी डिवाइडेड अमंग 2, 3, 4 पर्सन्स. या इट कीप्स अ चेक ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जो यहाँ है ना ये इट प्रिवेंट्स अकरेंस ऑफ एरर एंड फ्रॉड मीनिंग देयर बाय इट इज अ मोरल चेक ओवर द एम्प्लॉइज. बी क्लियर. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट. ये वो नहीं हो इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी नहीं, इंटरनल ऑपरेशनल. Operational means system audit. Internal audit means wider level control audit. Operation means efficiency audit. Input output ratio. Operation बोलते हो ना, कोई भी टास्क होता है उसका ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस ऑडिट. इनपुट डालते हो, प्रोसेस होता है एंड आउटपुट निकलता है. बस ये इनपुट आउटपुट रेशियो इंप्रूव करने का. अगर मैं 100 इनपुट डालता हूँ तो आउटपुट कितना निकला है, तो 95 निकला, तो 5 वेस्ट में गया. तो मैं ये प्रोसेस कैसे परफेक्ट बनाऊँ कि इनपुट 100 डालूँ तो 99 आउटपुट निकले या तो 100 आउटपुट निकले. या तो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑडिट. ऑपरेशन ऑडिट करो, पूरी प्रोसेस का ऑडिट करो. जो नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी है उसको निकाल दो एंड एकदम परफेक्ट कर दो. तो यहाँ 100 इनपुट डालो तो 100 आउटपुट निकले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखो ना 5 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे इफेक्टिव आपका आउटपुट आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट. अगर आपका आउटपुट नहीं आ रहा, आप पूरे दिन पढ़ते हो, अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो आपको चेक करना चाहिए, आपको ऑपरेशनल ऑडिट करना चाहिए कि मैं पूरे दिन जो कर रहा हूँ उसका थरोली चेक करो. कौन कौन सी एक्टिविटी मैं नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, व्हाट्सअप में टाइम पास कर रहा हूँ, इमीडिएटली कोई भी टोंग होता है तो व्हाट्सअप देखता हूँ, या तो पूरे दिन मेरा फोकस वहाँ नहीं होता पढ़ने में. मैं पढ़ता हूँ, बुक हाथ में होती मगर फोकस नहीं होता. दिस आर द नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी. नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटी निकाल दो तो ऑटोमेटिकली आपकी सिस्टम परफेक्ट हो जाएगी, प्रोसेस परफेक्ट हो जाएगी. या 100 डालोगे 100 निकलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 100% परफेक्ट आउटपुट आएगा. बी क्लियर. दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, रिस्क ऑडिट, रिस्क ओरिएंटेड ऑडिट. देखो इंटरनल ऑडिट में कॉम्प्लायंस इज द ऑब्जेक्टिव्स, या रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज द फोकस, या फाइनेंशियल अकाउंट इज द फोकस, यहाँ बिजनेस इज द फोकस. बिजनेस की हर एक प्रोसेस को रिव्यू की जाएगी. नॉन वैल्यूएडेड एक्टिविटी है उसको रिमूव की जाएगी. तो ऑल प्रोसेसेस विल बी परफेक्ट. या ऑडिट इज द फोकस, यहाँ एफिशिएंसी इज फोकस. इनपुट आउटपुट रेशियो इंप्रूव होता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी इज इंक्रीज. कोई भी बंदे बोलते हैं मेरी एफिशिएंसी अच्छी है, मतलब उसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है. तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज द फोकस. ब्रैकेट में लिख लो. यहाँ ट्रांजेक्शन इज द फोकस, यहाँ प्रोसेस इज द फोकस, यहाँ पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज द फोकस, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट इज द फोकस. हर एक प्रोसेस परफेक्ट होनी चाहिए. कॉस्ट सेंटर वाइज बजट मॉनिटरिंग, यहाँ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट रिजल्ट. Performance is the focus, process is the focus. Focus on policy, transaction and compliance. Yeah, focus on goal, strategy and risk management processes. So overall, I can say here, internal audit mein focus is the compliance. Here, the focus is the processes improvement. Being clear. So this is the difference between internal audit and operational audit. This is a good question. Good question as per my understanding. Yeah. तो हम यहाँ इंटरनल ऑडिट चैप्टर खत्म करते हैं. या उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. चलो गुड बाय, गुड डे.